नमस्कार। मैं राजेश टिकराल, मैथ मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल करनी खेड़ा फाजिलका तो आज मैं आप जी ਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 4 ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.2 ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 4.2 ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਟਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। y ਬਰਾਬਰ समीकरण दी है 3x + 5, y बराबर 3x + 5 ਦਾ पहला पार्ट हेठा दिते विकल्पां विचों हुण विकल्प शुरू हो गए। पहला विकल्प एक विलक्षण हल है, एक विलक्षण हल है। पहला पार्ट है एक विलक्षण हल है। दूसरा सिर्फ दो हल हैं, तीसरा पार्ट, तीसरा विकल्प हेठा दिते विकल्पों विचों पहला विकल्प, दूसरा विकल्प ते तीसरा विकल्प। अनंत रूप विच कई हल हैं, अनंत रूप विच कई हल हैं। मैं स्टेटमेंट द्वारा रिपीट करन लग्या। हेठा दिते विकल्पां विचों आ तीन विकल्प ने तुहाडे कोल, किहड़ा विकल्प सच है, इन्हां तीनां विचों किहड़ी वैल्यू ट्रू हैगी है जी। हुण ट्रू किहदे लई चैक करना है अते क्यों, वो ट्रू क्यों हैगी है जी, रीजन भी दसना है जी। y बराबर 3x + 5 आ एक समीकरण है, y बराबर 3x + 5 दा एक विलक्षण हल है, सिर्फ दो हल हैं, अनंत रूप विच कई हल हैं। तो ये साडे कोल जिहड़ी समीकरण है ये दो चल वाली रेखी समीकरण। हुण दो चल वाली रेखी समीकरण का हल असीं निकालना सीखिया है जी। जदों असीं दो चल वाली रेखी समीकरण का हल निकालते हैं कि एक हल आंदा है, कि दो हल आते हैं, कि तीन हल आते हैं, या जिन्ने मर्जी निकाल सकते। तो असीं ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ x0 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ y0 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ x0 ਇੱਕ ਵਾਰੀ y0 ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੱਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੱਲ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜੀਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਮਤਾਂ x ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, y ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੱਲ ਹਨ, ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ y ਬਰਾਬਰ 3x + 5 ਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, तीसरा पार्ट बनेगा अनंत रूप ਵਿੱਚ कई हल ਹਨ। क्यों, क्योंकि x ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ, x ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ y ਦਾ, y 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 ਦੇ
ਇੱਕ x ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ y ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ y ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ y ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ x 0 ਲੋਗੇ y ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ y ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਮਤ ਆਏਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਕੀਮਤ ਲਈ x ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ 0 ਲਓ 1 ਲਓ 2 ਲਓ 3 ਲਓ 4 ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਲ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ y ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਤੇ y ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਲਈ x ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ y ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ x ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ x ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ y ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ y ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ x ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ x ਨਾਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ y ਨਾਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ऐसे ही एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.2 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ 4 ਹੱਲ ਲਿਖੋ ਹਰੇਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ 4 ਹੱਲ ਯਾਨੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 4 ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਤ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 4 ਹੱਲ ਲਿਖੋ ਕੋਈ 4 ਹੱਲ ਲਿਖੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 4 ਹੱਲ ਲਿਖੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੱਸੋ पहला पार्ट समीकरण है 2x plus y is equal to 7 2x plus y is equal to 7 दूसरी समीकरण pi x plus y is equal to 9 pi x plus y is equal to 9 तीसरी समीकरण x is equal to 4y x is equal to 4y लो जी 3 पार्ट ने साडे कोल हेठां दित्तियां समीकरण जो हरेक समीकरण दे 4 हल लिखो एंदे भी 4 हल बनाने ने एंदे भी 4 हल बनाने ने एंदे भी 4 हल बनाने ने सब तो पहले आ जाओ फर्स्ट पार्ट 2x plus y is equal to 7 दो हल दा सी बड़े ही सिंपल तैयार करते हैं एक बार ਅਸੀਂ x0 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ x0 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ x ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ y ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ y0 ਲਾਂਗੇ ਉਲਟ ਵੀ y0 ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਨੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ x1 ਲੈ ਲਓ y1 ਲੈ ਲਓ ਜੀ x2 ਲੈ ਲਓ y2 ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਜੀ तो एक बार लो x बराबर 0 लैन ते x बराबर 0 लैन ते परना ये मूल समीकरण है तो 2 गुना 0 प्लस y बराबर 7 ये टर्म खत्म हो जाएगी y बराबर 7 हल हमेशा ऑर्डर पे लिखने पहले x की कीमत 0 फिर y की कीमत जी हमने निकाली है 0,7 इस तो बाद दूसरी बारी y बराबर 0 लैन ते y बराबर 0 लो पढ़ना है मूल समीकरण चाहिए y की जगह पे 0 कर दो 0 लैन का ही फायदा होता है सिंपलीफिकेशन ईजी हो जाती है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं का भी 0 ही लेना है ये ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ x0 ਨਾ ਲਓ x1 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ y ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 2x 7 x 7/2
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਬਣ ਗਿਆ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਨਿਕਾਲੀਏ ਕੋਮਾ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋ ਹੱਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਨੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਹੱਲ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੰਤ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ x ਚਾਹੇ 1 ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ y 1 ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ x 1 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, x ਬਰਾਬਰ 1 ਲੈਣ ਤੇ x ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੈ ਲਓ। ऐसे मूल समीकरण में भरनी है 2 गुना 1 प्लस y बराबर 7, 2 प्लस y बराबर 7, y बराबर 2 उधर शिफ्ट कर दो, 7 माइनस 2 y बराबर 5। तब ऑर्डर पे लिखांगे x की कीमत 1 y की कीमत 5। लो जी तीसरा हल आ गया जी, ये भी हल आ गया, ये भी हल आ गया, ये भी हल आ गया जी। इस तरह आप निकाले ने चार हल। x इज इक्वल टू 2 ले लो, जरूरी नहीं x 2 लेना है, y बराबर 2 भी ले सकते जो, y बराबर 1 भी ले सकते, x 1 लिखता है y 1 नहीं लिखता है थे, x y बराबर 1 ले लो, x बराबर 2 लो। ऐसे मूल समीकरण में भरो 2 इंटू 2 प्लस y बराबर 7, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 4, y बराबर 3। ऑर्डर पे लिखांगे x की कीमत कोमा y की कीमत। लो जी तो ये साडे कोल आ गया जी जब चौथा हल। टोटल असी चार हल निकाले सी। ऐसे तरह के नाल इहदा सैकंड पार्ट देखो जी, बड़े ही सिंपल होंदे ने हल निकाले। एक बारी x 0 लैनी, एक बारी y 0 लेना, फिर उस तो बाद तुहाडी चॉइस है, एक बारी x 1 ले लो या x 2 ले लो या y 1 ले लो। इस बाद आ जाओ सेकंड पार्ट, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये मूल समीकरण है जी। वार वार मैं इहदे विच ही x की वैल्यू पुट करांगा या y की वैल्यू पुट करांगा जी। तो लो x बराबर 0 लैन ते, क्योंकि क्या है ना जी, एक बारी x 0 लेना, एक बारी y 0 लेना। x 0 लो, पाई गुना 0 प्लस y बराबर 9, ये टर्म खत्म हो जाएगी, y बराबर 9। तो हल ऑर्डर पे लिखांगे 0, 9 पहला हल। दूसरा y बराबर 0 लैन ते y की वैल्यू 0 लो, भर दो इत्थे, पाई x प्लस y 0 भर दो बराबर 9, पाई x 0 खत्म हो जाएगी बराबर 9, x बराबर 9 बटा पाई। ऑर्डर पे हल लिखांगे x की कीमत 9 बटा पाई कोमा y की कीमत जी असी पहले चूज की सी। दूसरा हल, हल निकालने कितने ने 4। तीसरा हल हुण की लेना जी, मान लो पिछली बारी मैं x 1 लिता सी, हुण सपोज करो चेंज कर देना y बराबर 1 लैन ते। चॉइस है कि अनंत रूप के कई हल होंदे ने, ये नहीं कि पिछले क्वेश्चन दे विच मैं x 1 लिता सी फिर x 2 लिता सी, इहदे मैं बदल देना। तुहाडी चॉइस है नहीं बदलना था जी। y बराबर 1 लो, मूल समीकरण में भरो, पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, पाई x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन पाई। तो ऑर्डर पेयर हल नूं बनाओ, x की कीमत 8 अपॉन पाई कोमा y की कीमत पहले असी मन्नी सी 1। ये आ गया तीसरा हल। चार हल निकालने ने, y 1 लिता सी, y 2 ले लो, 2 लैन ते। ऐसे मूल समीकरण में भरो, पाई x प्लस y की कीमत 2 भर दो, पाई x बराबर 9 माइनस 2, पाई x बराबर 7, x बराबर 7 बटा पाई। तो साडे कोल ऑर्डर पे हल बन गया 7 बटा पाई कोमा y असी 2 लिता सी। चार हल निकाले सी, 1 2 3 4। ऐसे तरह दे नाल तीसरा पार्ट देखो, हल निकालने बड़े ईजी होंदे ने। 4 हल निकालो, 5 हल निकालो, जिन्हें मर्जी निकाल सकते जो, जेड़े मर्जी निकालो, जेड़ी मर्जी x की वैल्यू भरो। तीसरा पार्ट x इज इक्वल टू 4y। लो जी, एक बारी x 0 लेना है, जरूरी नहीं हमेशा x 0 लेना है, पहले y 0 भी ले सकते जो, y बराबर 0 लैन ते जी, बदल भी सकते जो।
चॉइस फिक्स नहीं भी पहले x 0 लेना फिर y 0 लेना। लो जी पहले y 0 ले ले जी, पर दो x बराबर 4 गुना 0, x कितना आ गया 0, तो ऑर्डर पे हल लिखांगे 0, 0 x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। हुन y बराबर 0 ले ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ x 0 नहीं ਲਾਂਗੇ, क्योंकि ये 0 0 जो आ जाए ना जी, जे तुसी दूसरी बारी x 0 लोगे तो सोल्व करके हल करने तो बाद इहो हल दोबारा तैयार हो जाएगा जी। तो इको ही हल नूं तैयार करने वास्ते ਅਸੀਂ दो बारी कैलकुलेशन नहीं करांगे जी। तो ये वाला नियम फेल हो जाता है जदों दोनों 0 0 आ जाए। फिर एक बारी ही 0 लेना है, तुसी चाहे x 0 ले लो चाहे y 0 ले लो, क्योंकि x 0 लोगे तब यही बनेगा, y 0 लोगे तब यही बनेगा जी। तो एक ही हल वास्ते ਅਸੀਂ दो बारी कैलकुलेशन नहीं करनी। हुन नेक्स्ट ऑप्शन बदल दो, x बराबर या y बराबर 1 लैन ते y की वैल्यू 1 लो, क्योंकि समीकरण ही इस तरह की बस y की वैल्यू बदली जो x की वैल्यू निकाली जो, तो मैं y1 लिखा है। ਤੁਹਾਡੀ चॉइस है x1 भी ले सकते हो। y1 लागे x बराबर 4 गुना 1, x कितना आ गया 4, हल की बन गया x की कीमत कोमा y की कीमत 1। दूसरा हल बस y बदली जो, y बराबर 1 लिया सी 2 ले लो जी, y की वैल्यू 2 लोगे, x बराबर 4 गुना 2, x कितना आ गया 8, हल बन गया ऑर्डर पेज x की कीमत कोमा y की कीमत 8 कोमा 2। 3 हल हो गए जी, y की कीमत बदली जो बस y बराबर 3 लैन दी, y की कीमत 3 लो। अब मूल समीकरण में भरो x बराबर 4 गुना 3, x बराबर 4 ती 12, हल बन गया x की कीमत 12 y की कीमत 3। 4 हल निकालने सी, चारों हल आ गए, पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल, चौथा। तो इस तो बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 दा तीसरा क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन हल नाल रिलेटेड ने जी, कुछ भी नवा नहीं है जी, जो असी टॉपिक किया है वो ही बार बार आ रहा जी। तो इस तो बाद आ गया दसो कि हेठा दिते हलों विचों, तीसरा क्वेश्चन, दसो कि हेठा दिते हलों विचों तुहानू कुछ हल दिते हुए ने जी। दसो कि हेठा दिते हलों विचों केड़ा केड़ा समीकरण तुहानू दिती है जी, केड़ा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4 दा हल है, अते केड़ा नहीं है जी, कहते केड़ा नहीं है। पहला पार्ट तुहानू हल दिते ने जी 0,2 हुण आपां नूं पता नहीं गया हल है कि नहीं गा। दूसरा है जी दूसरा पार्ट 2,0, तीसरा पार्ट 4,0, चौथा पार्ट वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2, पंजवा पार्ट 1,1। लो समीकरण वाली है। दसो कि हेठा दिते हलों विचों या हल विचों केड़ा समीकरण इहदा हल है अते केड़ा नहीं। दसो कि हेठा दिते हल विचों या हलों विचों केड़ा समीकरण इहदा हल है अते केड़ा नहीं। आपां नूं सारे हल दिते ने, आपां नूं नहीं पता समीकरण दे हल ये हैगे ने कि नहीं है। किसी होर समीकरण दे भी हो सकते हैं, ये हैगे हल ने, लेकिन जरूरी नहीं ऐसे समीकरण दी होनी, किसी होर दे भी हो सकते हैं। असीं ये दसना ऐसे समीकरण दे हैगे ने कि नहीं है। तो सब तो पहले की करो, पहला पार्ट 0,2 एंड विच x बराबर 0 y बराबर 2 लैन ते असीं करदे की हां, हल है या हल नहीं है। चेक किवें करदे हैं। उस हल के अंदर पहली कीमत होती है x की, दूसरी कीमत होती है y की। तो x ते y दी कीमतां समीकरण ने भर दित्तियां ने।
ਜੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਹੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ x ਬਰਾਬਰ 0 y ਬਰਾਬਰ 2 ਲੈਣ ਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਲੋ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜੀ x 2y ਹੈ ਜੀ। x ਮਤਲਬ 0 ਮਾਈਨਸ 2 ਗੁਣਾ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2, 0 ਮਾਈਨਸ 2 दूनी 4 हल करके कितना आ गया -4। सज्जा पासा राइट हैंड साइड पहले ही 4 दी है। -4 4 के बराबर होंगे नहीं होंगे जी। लैफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं हैगी राइट हैंड साइड के, इस करके 0,2 हल नहीं है। उन्हें कैसी केड़ा नहीं है, ये हल नहीं है जी। हल हो सकता है लेकिन पता नहीं केड़ी समीकरण है, इस समीकरण का ये हल नहीं है। इसी तरह के नाल ही असी सैकेंड पार्ट चेक करांगे 2,0 तो x बराबर 2 y बराबर 0 लैन ते परो खब्बे पासे विच लैफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x कितना है 2 माइनस 2 गुना y कितना है 0, तो 2 माइनस 2 गुना 0 0 हल करके कितना आ गया जी 2। तो राइट हैंड साइड हल करनी नहीं, पहले ही 4 दी, 2 4 के बराबर है नहीं है जी। लैफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं हैगी राइट हैंड साइड दे, इस करके दूजा पार्ट 2,0 हल नहीं है। यही दसना सी केड़ा हल है ते केड़ा हल नहीं है जी। इसी तरह के नाल तीसरा पार्ट सिंपल बिल्कुल बस वैल्यू समीकरण दे विच भरी जानियां ने ते चेक करी जाना जी। 4,0 इनू चेक करना जी। तो x बराबर 4 y बराबर 0 लैन ते लो जी भर दो दे विच खब्बे पासे दे विच लैफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x कितना है 4, लैफ्ट हैंड साइड बन गई 4 माइनस 2 गुना y कितना है 0, x 4 लिता y 0 लिता, यही भरिया 4 माइनस 0 हल करके कितना आ गया 4। सज्जा पासा की है पहले ही 4 है, 4 4 के बराबर होंगे कोई शंका नहीं। तो LHS बराबर की है RHS, जो दोनों साइडा बराबर हो जान तो आप की कह देने हल है। तो आप किनू चेक कर रहे थे 4 0, तो 4 0 की है जी हल है। ऐसे तरह के नाम चौथा पार्ट सेम मैथड है, मैथड तुसी नहीं बदलना, बस वैल्यूज ही फिल करी जाने ने, वैल्यूज बदली जाएंगियां। हुण x बदल गया, सीधा ही लिखने लगा मैं x बराबर वर्गमूल 2 y बराबर 4 वर्गमूल 2 लैन तेज खब्बा पासा लैफ्ट हैंड साइड की बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख दो x माइनस 2y, x मतलब वर्गमूल 2 माइनस 2 गुना y मतलब 4 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 माइनस 2 चौकी 8 वर्गमूल 2, दोनों च वर्गमूल 2 कॉमन ले लो तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी आ 1 रह गया, पूरी टर्म बाहर चलेगी, माइनस इत्थे 8 रह गया, वर्गमूल 2 माइनस का 7 हल करके माइनस 7 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं। सज्जा पासा की बन गया जी, बनया कि पहले दिता है 4, हल करना ही नहीं, तो खब्बा पासा सज्जे पासे के बराबर है नहीं है जी। तो इथों की हो गया जी, क्लीयर हो गया। किनू चेक कर रहे सी वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 नू चेक कर रहे सी, ये हल किए नहीं है जी, हल नहीं है। ऐसे तरह के नाल पंजवां पार्ट लास्ट पार्ट क्या ना केड़ा हल है केड़ा हल नहीं है जी। तो पंजवां पार्ट 1,1 नू चेक करना, x बराबर 1 लो y बराबर 1 लैन ते परो मूल समीकरण के खब्बे पासे विच x माइनस 2y, x 1 y भी 1 माइनस 2 हल करके कितना आ गया -1। सज्जा पासा राइट हैंड साइड पहले ही 4 दी है, -1 4 के बराबर होंगे नहीं होंगे।
ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 1,1 ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਬਣਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ऐसे ही एक्सरसाइज 4.2 ਦਾ चौथा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 ਦਾ चौथा क्वेश्चन, के ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ के ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ के ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ x ਬਰਾਬਰ 2 x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण दी हुई है जी। समीकरण 2x + 3y बराबर k, 2x + 3y बराबर k दा एक हल है, दा एक हल है। हुण हल दिता है, हल है, चेक नहीं करना। आ हल इंदा इस समीकरण दा है। समीकरण कंप्लीट नहीं कि इहदे विच के कांस्टेंट दी वैल्यू तुसीं निकालनी है। इत्थे के कितना रखिए भी ये इस समीकरण दा हल बनदे जी। हुण हल दी परिभाषा की हुंदी जी, जिहड़ा हल हुंदा है वो समीकरण दे खब्बे पासे ते सज्जे पासे नूं बराबर करदा जी। हुणे कीता जी तो तुसी खब्बे ते सज्जे नूं बराबर कर दो जी, तो के दी कीमत आ जाएगी जी। क्यों की इत्थे लिखना है जी, क्योंकि x बराबर 2, y बराबर 1 दिती हुई समीकरण लिखनी है तो पूरी लिख भी सकते हो। दिती हुई समीकरण लिख देना, लो जी बराबर के दा हल है। इस ਲਈ ਇਹ समीकरण ਨੂੰ संतुष्ट करेगा, संतुष्ट मतलब खब्बा पासा ते सज्जा पासा बराबर होएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी जी 2x + 3y, 2 × x कितना है 2 + 3 × y कितना है 1, तो 2 दूनी 4 + 3 कितना आ गया 7। सज्जा पासा कितना है के, पर क्योंकि हल दिता है इसलिए खब्बा पासा सज्जा पासा दे बराबर होएगा। क्योंकि रीजन दे सकते जो, क्योंकि हल दिता होया है ये असीं चेक नहीं करना सी, खब्बा ते सज्जा बराबर लैके चलना सी। तो खब्बे पासे दे विच की है जी 7, सज्जे पासे की है के, तो उल्टा उल्टी कर दो, के बराबर की आ जाएगा 7। लो जी ये साडा अज दा टॉपिक सी 2 चल वाले रेखी समीकरण का हल। तो इहदे नाल रिलेटेड असीं एक्सरसाइज 4.2 दे सारे ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सी चारों दे चारों कर लिते ने। तो हुण असीं इस तो बाद 2 चल वाले रेखी समीकरण का अलेख किवें बनाना है उहदे विच भी हल वाला टॉपिक यूज होएगा जी। ऐ समझ लो ये उस टॉपिक का भी बेस होएगा, तुहानूं बड़े ध्यान दे नाल करना है। तो उम्मीद करदा भी ये टॉपिक तुहानूं समझ आया ना। सारे ही विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।